السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے. زبر کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. لام کے اوپر جزم ہے. جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. میم کے اوپر جزم ہے. جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. دال کے اوپر پیش کی حرکت ہے. پیش کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. پیش کو معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے اس لیے اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے. لام کے اوپر تشدید ہے. تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھیں گے. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود سے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہے الف مد کے اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے. زیر کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. را کے اوپر زبر کی حرکت ہے. زبر کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. با کے اوپر تشدید ہے. تشدید حرف کو 2 بار پڑھیں گے. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود سے. الف لام کے بعد حروف خمری میں سے لام ہے اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے بلکہ لام کو پڑھیں گے. لام کے اوپر جزم ہے. جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. عین کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہے الف مد کے اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے. زبر کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے. زبر کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے را ہے اس لیے الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ را کو پڑھیں گے. را کے اوپر تشدید ہے. تشدید اور حرف کو 2 بار پڑھیں گے. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اس سے. را کے اوپر زبر کی حرکت ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. ہا کے اوپر جزم ہے. جزم والا حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. میم کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہے الف مد کے اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون کے نیچے زیر کی حرکت ہے. زیر کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے را ہے اس لیے الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ را کو پڑھیں گے. را کے اوپر تشدید ہے. تشدید اور حرف کو 2 بار پڑھیں گے. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اس سے. را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے. زیر کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. آگے آیت ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. زیر پر رفع کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. میم کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہے الف مد کے اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے. زیر کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. کاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے. زیر کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو لین ہوگا. واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھے. واو لین کو معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے. میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے. زیر کو جلدی پڑے تھوڑا بھی نہ کھینچے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے دال ہے اس لیے الف لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ دال کو پڑھیں گے. دال کے اوپر تشدید ہے. تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھیں گے. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود سے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے.
नून के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, जेर की आवाज नीचे को जाती है। आगे आयत ऐसे गोल शब्द को आयत कहते हैं। जेर पर रफ करना हो तो आखिरी हर्फ को जज्म देकर सांस छोड़े। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमजा के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, जेर की आवाज नीचे को जाती है। या के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले को दो बार पढ़ेंगे, एक बार पहले वाला हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उससे। काफ के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। आइन के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। बा के ऊपर पेश की हरकत है, पेश को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, पेश को मारूफ पड़े और मजहूल आवाज से बचे, पेश की आवाज आगे को जाती है और होठ गोल होते हैं। दाल के ऊपर पेश की हरकत है, पेश को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, पेश को मारूफ पड़े और मजहूल आवाज से बचे, पेश की आवाज आगे को जाती है और होठ गोल होते हैं। वाव के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। या के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, जेर को मारूफ पड़े और मजहूल आवाज से बचे, जेर की आवाज नीचे को जाती है। या के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को दो बार पढ़ेंगे, एक बार पहले वाला हर्फ से मिलाकर एक बार खुद उससे। काफ के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। सीन के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ता के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। नून के ऊपर पेश की हरकत है, पेश को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, पेश को मारूफ पड़े मजहूल आवाज से बचे, पेश की आवाज आगे को जाती है और होठ गोल होते हैं। आगे आयत ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। पेश पर रफ करना होता आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़े। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हा के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। दाल के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे, जेर को मारूफ पढ़े और मजहूल आवाज से बचे, जेर की आवाज नीचे को जाती है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अलिफ लाम के बाद हुरूफ शम्सी में से स्वाद है, इसलिए अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि स्वाद को पढ़ेंगे। स्वाद के ऊपर तजदीद है, तजदीद वाले हर्फ को दो बार पढ़ेंगे, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उससे। अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। अलिफ लाम के बाद हुरूफ खबरी में से मीम है, इसलिए अलिफ को ना पढ़ेंगे बल्कि लाम को पढ़ेंगे। सीन के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ता के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। मीम के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। आगे आयत ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। जबर पर रफ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़े। सौत के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, जेर की आवाज नीचे को जाती है। अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पड़े थोड़ा बिना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है। अलिफ लाम के बाद हुरूफ खबरी में से जाल है, इसलिए अलिफ को ना पढ़ेंगे बल्कि लाम को पढ़ेंगे। लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को दो बार पढ़ेंगे, एक बार पहले वाला हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उससे। या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा होगी,
या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। नून के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है। नून के ऊपर जज्म है इसलिए नून साकिन होगा। नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से आइन है इसलिए इजहार होगा। आइन के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है। मीम के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ताकि ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है। आइन के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है। या साकिन से पहले जबर है इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज के साथ जल्द पढ़े। या लीन को मारूफ पढ़े और मजहूल आवाज से बचे। मीम के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या साकिन से पहले जबर है इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज के साथ जल्द पढ़े। या लीन को मारूफ पढ़े और मजहूल आवाज से बचे। रॉ के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे। जेर की आवाज नीचे को जाती है। अलिफ लाम के बाद हुरूफ खबरी में से मीम है इसलिए अलिफ को ना पढ़ेंगे बल्कि लाम को पढ़ेंगे। गैन के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बा के नीचे जेर की हरकत है, जेर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे। जेर की आवाज नीचे को जाती है। आइन के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है। या साकिन से पहले जबर है इसलिए या साकिन से पहले जबर है इसलिए या लीन होगा। या लीन को नर्म आवाज के साथ जल्द पढ़े। या लीन को मारूफ पढ़े मजहूल आवाज से बचे। मीम के ऊपर जज्म है, जज्म वाले को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है। लाम के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है। अलिफ लाम के बाद हुरूफ शम्सी में से वाद है इसलिए अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि वाद को पढ़ेंगे। वाद के ऊपर तजदीद है, तजदीद और हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे। एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर, एक बार खुद उससे। अलिफ से पहले जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है इसलिए मद्दे लाजिम होगा। लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद और हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे। एक बार पहले वाला हर्फ से मिलाकर, एक बार खुद उससे। या साकिन से पहले जेर है इसलिए या मद्दा होगी। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। नून के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है। आगे आयत, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। जबर पर रफ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस छोड़े। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।